ایس ایس پی آپریشن شعیب کی زیر صدارت کرائم میٹنگ، اہم افسران کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں جرائم کی روک تھام اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایس ایس پی آپریشنز ملک محمد شعیب کی زیر صدارت ایک عام کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ شرکاء میں تھانہ گولڈا کے ایس ایچ او چودھری ناصر منظور، تھانہ سنبل کے ایس ایچ او ملک آصف اور تھانہ شالیمار کے ایڈیشنل ایس ایچ او اسحاق خان شامل تھے۔ اجلاس کے دوران علاقے میں بڑھتے ہوئے جرائم، اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز ملک محمد شعیب خان نے افسران کو ہدایات جاری کیں کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے گشت میں اضافہ کیا جائے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں۔ مزید برآں ایس ایس پی آپریشنز نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ پولیس حکام نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں کے تعاون سے اسلام آباد کو پرامن شہر بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ میاں والی پاکستان کی تاریخی فتح اور آپریشن بنیان المرصوص کے نتیجے میں ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر ریسکیو 1112 کی جانب سے افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یوم تشکر منایا گیا۔ سرسبز ہلالی پرچم کو اسلامی پروقار تقریب اور فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ کیسر آباد شاہ بیورو چیف میاں والی کے مطابق پاکستان کی حالیہ عظیم الشان فتح اور دشمن ملک بھارت کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے پر ریسکیو 1112 میاں والی نے خوشی اور پرجوش انداز میں یوم تشکر منایا۔ اس سلسلے میں کمیونٹی ریسکیو میاں والی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیورز نے سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے دوران ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کا کہنا تھا کہ حالیہ بیرونی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ملکی سلامتی کے ضامن پاک فوج کو اس شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس کی بدولت آج قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ اس موقع پر ریسکیو جوانوں کے وطن سے محبت اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ فتح کی خوشی میں ریسکیو 1112 کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا جو ریسکیو 1112 آفس سے شروع ہو کر کالا باغ چنگی سے ہوتا ہوا جہاز چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال مسلح افواج کی بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی اور مغرور اور جاری بھارت کی عالمی شرمندگی پر ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام شاندار الفتح ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی، وکلاء حضرات اور صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء میں ممبران صوبائی اسمبلی ملک محمد ارشد، ملک قاسم ندیم، سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی پیر خضر حیات شاہ گھگا، ڈی پی او رانا طاہر الرحمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نیاز احمد مغل، اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب، صدر ساہیوال پریس کلب محمد نعیم شیخ، پیر احسان الحق ادریس، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری، قاری بشیر احمد، سید حذیفہ بخاری اور شیخ نعمان آصف شامل تھے۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہوئی جس کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مسلح افواج کی بہادری اور ان کی لازوال قربانیوں کو سراہا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ ریلی ڈی سی آفس چوک پر اختتام پذیر ہوئی جہاں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے ملک و قوم کے استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاک فوج پاک فوج فوجی ادارے نعرہ تکبیر۔ قیامت رہے گی اور یہی پیغام ہم آج یہ سب اکٹھے ہو کے دے رہے ہیں کہ ہمارے میں کوئی فرق نہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور اسی کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ سے دعا ہے کہ جس طرح میرے ہاتھ میں یہ پاکستان کا پرچم سر بلند ہے تا قیامت تک پاکستان کا پرچم اسی طرح سر بلند رہے اور ہم اسی طرح فخر سے
पहुंच चुके हैं। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। तहसील इंतजामिया की जानब से अफवाज पाकिस्तान से यौम तशक्कर इंतहाई के साथ मनाया जा रहा है। शहर में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत तहसीलदार अशरफ पताफी, सरदार जगदेश जस्सी सिंह, चौधरी अब्दुल रज़ाक कराई, खलील अहमद सोमरो की सरबराही में निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, शहरियोत की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूख फतह पर तहसील इंतजामिया ने मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। रैली के शुरका ने हाथों बैनर उठा रखे थे और पाकिस्तानी झंडे उठाकर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और शाहीनों ने इनके अड्डों को चंद मिनटों में तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर जनरल हाफिज आसिम मुनीर की बेहतर हिकमत अमली को हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने अपने से बड़े ताकतवर मुल्क की फौज को नाको चने चबवा दिए। 25 करोड़ पाकिस्तान अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी है और जब भी वक्त पड़ेगा अपनी जानों का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी अंजुमन ताजरान सदर बाजार नारंग की जानब से पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर फतह का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हाथों में सब्ज हरारी परचम उठाए पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सदर बाजार नारंग मंडी में पाक फौज ने इंडिया को जो घर में घुस कर धूल चटाई है, इस वक्त पूरे नारंग मंडी में जश्न का माहौल है। शहरी मिली तरानों के ऊपर रक्स कर रहे हैं और जगह जगह मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। शहरियों का प्रेस क्लब नारंग मंडी से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि पाक फौज की वजह से आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है। जनरल आसिम मुनीर ने कामयाब हिकमत अमली से 15 दिन से जारी इंडियन जारहियत को चंद मिनटों में घुटनों पर ला दिया है। आज मोदी सारी दुनिया से सीज फायर के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। शहरियों की जानब से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। शहरियों की जानब से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो पाकिस्तान पेस एक्स सर्विसमैन की जानब से पाकिस्तान की फौज से इजहार यकजहती और भारतीय सरकार के खिलाफ बदर चौक पर रैली निकाली गई। रैली में इंडिया की सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। रैली को खिताब करते हुए रिटायर्ड फौजी एजाज रस्तमानी, शरीफ मेमन, राजा तसव्वुर खासकेली, शकील अहमद ज़ऊर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं, हर लिहाज से पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ड्रामे करता है, लेकिन अब हम इन ड्रामों में आने वाले नहीं हैं। हम इंडिया को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। हम पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना भी देने के लिए तैयार हैं। हम नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना भारतीय सरकार का जीना हराम कर देंगे। आखिर में पाकिस्तान पेस एक्स सर्विसमैन के रहनुमाओं की जानब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जद्दा के साहली शहर में उमर फ़ारूक रियाज से तशरीफ़ लाए हुए पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद उमर फ़ारूक के एजाज़ में फोरम के मेंबरान ने मकामी होटल में शाही का अहतमाम किया, जिसकी सदारत फोरम के सरपरस्त आला सैयद मसरत खलील ने की। अज़ाज़ी मेहमानाने ग्रामी में सीनियर सहाफ़ी खालिद नवाज चीमा और याहिया इशफाक शामिल थे। फोरम के सदर शुएब अल्ताफ़ राजा ने मेहमान खसूसी मोहम्मद उमर फ़ारूक का खैर मकदम करते हुए इनकी सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हालिया जंग के दौरान सीज़ फायर के ऐलान पर भी खुशी का इजहार किया और जद्दा की सहाफ़ी बरादरी की जानब से पूरी कौम को मुबारकबाद दी और पाक फौज की खिदमात, शुजाअत, जंगी महारतों, कारनामों और कामयाबियों को सराहा। उन्होंने खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में की गई गैर मामूली जंगी हिकमत अमली पर रोशनी डाली और कहा कि फ़ौज ने जिस अज़म और हौसले के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया वो काबिल इस्ताइश है। खालिद नवाज चीमा ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने किरदार से न सिर्फ फ़ौज के जवानों बल्कि अवाम में भी उम्मीद और जज्बे को बढ़ाया है। इनकी महारत और क़यादत की मिसालें आइंदा नस्लों के लिए मिशल राह बनेंगी। याहिया इशफाक ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को बाखूबी निभाया बल्कि कौम के हौसले भी बुलंद किए। सैयद मसरत खलील ने अपने सदारती खिताब में सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मुश्किल हालात में महारत और हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया। तकरीब से मलक अदील, रियाज खोकर, मोहम्मद अदील,
شعیب الطاف راجہ، مرزا مدثر احمد، میاں محی الدین، شباب بھٹا اور سید مروت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حرم عمر فاروق نے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب میں شریک تمام صحافیوں نے ملک کی ترقی دفاع کے لیے یکجہتی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی سندھ سے بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں۔ سندھ پولیس، آئی جی سندھ، اے آئی جی کراچی، اینٹی ویکل لفٹنگ سیل ملیر اور متعلقہ اداروں سے سوالیہ نشان۔ سندھ پولیس ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ایف آئی آر نمبر 85/2024 تھانے اسٹیل ٹاؤن میں ملیر ایف آئی آر درج ہے، جس کے ملزم صدر درین شیخ اور سہیل شیخ پر کارروائی کر کے چلان کیس جائے اور مدعی عرفان مری کا موٹر سائیکل واپس دلایا جائے جلدی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے۔ لیاقت پور سابق وفاقی وزیر اور معروف دینی اسکالر صاحبزادہ سید حامد سعید قاسمی نے کہا کہ رب کریم کی شناخت اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی۔ اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے ہمیں اپنا کردار بلند کرنا ہوگا۔ بار ایسوسی ایشن لیاقت پور کے زیر اہتمام منعقدہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بتوں کے بیچاروں کو اندھے کے رب پر ایمان لانے کی دعوت دینے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار عمل سے ثابت کیا کہ وہ صادق و امین ہیں۔ حامد سعید قاسمی نے کہا کہ ہماری اولاد تب تک فرما بردار اور نیکوکار نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا اپنا کردار اعلیٰ و بلند نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں انسانیت کی عظمت اور کردار کے معیار کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ محفل میلاد سے عالم دین مفتی عبدالقادر، سابق صدر بار قاری احمد سعید خان، جنرل سیکرٹری جام محمد خالد بھونا ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ سید ناصر حسین شاہ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ محفل میں وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کراچی ملیر بن قاسم رپورٹ حفیظ رحمان سیال۔ انصاف مانگے تو کس سے مانگے؟ کون انصاف دے گا؟ پولیس بھی مظلوم کے بجائے ظالم کا ساتھ دے تو کہاں جائیں؟ محمد اسلم چانڈیو فیملی کے ساتھ انصاف کا منتظر۔ میری فیملی جب اپنے گھروں کی طرف گئے تو سنجن چانڈیو، عاشق چانڈیو اور ان کے ساتھیوں نے میری فیملی کو گاؤں سے نکال دیا اور الٹا سہڑ پولیس بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ سہڑ تھانے دار کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ زمین یا گھروں پر آئے تو ایف آئی آر کاٹ کر بند کر دوں گا۔ اگر پولیس بھی ظالم کا ساتھ دے تو انصاف کون دے گا؟ کیوں؟ تو جیسے زمین پہ کھڑا تھا تو میری بھابھی آئی کہ ہمارے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی قتل ہوا ہے اور ہمارے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو ادھر سے چلا جا۔ پھر وہ میری بھابھی کا کہنا مان کے اس کو بھی ساتھ لے کے آیا، خود بھی کراچی چلا آیا۔ کراچی چلا آیا تو مہینے ڈیڑھ کے بعد انہوں نے پیچھے کوئی ایف آئی آر کروا دی تھی۔ ایف آئی آر کروا کے یہاں سے کراچی کی پولیس کے 4 نمبر کورنگی نے گرفتار کروائی تو گرفتاری یہاں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تو پھر ضلع لاڑکانہ کا جو آئی پولیس تو انہوں نے بولا کہ ہم نے ادھر گرفتاری کی ہے سیوانی سڑک پہ، اور بھلے پھولوں کے ہار اور نوٹوں کے ہار پولیس کو پہنا رہے ہیں کہ تو نے بڑا اچھا کردار کیا ہے۔ جب پولیس کو پتہ ہے کس نے قتل کیا ہے، کس نے سامٹیا اسٹاف پہ موقع ہوا ہے، قتل ہوا ہے، سریعام ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے، جب اتنا انصاف ہمارے کو نہیں مل رہا ہے، ہمارا بندہ کراچی میں گرفتار ہو رہا ہے اور کیس لاڑکانے کے لگ رہے ہیں، ہم کس سے انصاف مانگیں؟ کہاں جائیں؟ بتاؤ تو جائیں کہاں؟ اتنا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جب ان کے کیس چل رہے ہیں کہ آلریڈی کیس جب کورٹ میں چل رہے ہیں تو پھر زمینوں پہ قبضہ کہاں کے لیے؟ زمینوں پہ قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ گھروں پہ قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ پھر وہ اگر خود کو مظلوم بھی کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے تو پھر زمینوں پہ قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو ان سے گورنمنٹ نہیں پوچھ رہی، تو گورنمنٹ صرف ہمارے لیے جب اچھا جس نے مرڈر کیا وہ بھی گرفتار ہے؟ وہ گرفتار نہیں ہے۔ تو آپ کا جو بھائی ہے جس کو سزا آئی ہے وہ قاتل کا کیا لگتا ہے؟ وہ قاتل کا بہنوئی لگتا ہے۔ اچھا اور ان کا قتل بھی زنا کے معاملے پہ ہوا ہے، انہوں نے بھی کوئی ناجائز قتل تھوڑی کیا ہے، ان کا مسئلہ پرانا چل رہا تھا، سمجھ گیا؟ قتل ہوا ہے زنا کے موقف پہ، جب زنا کے موقف پہ ہوا ہے ان کا اپنا معاملہ تھا، ایسے تھوڑی ہے کہ قتل کرے سالہ اور جیل میں چلا جائے بہنوئی، ایسے کبھی زمانے میں ہوا ہے کیا؟ تو ابھی آپ کس سے انصاف مانگیں؟ ابھی میں انصاف مانگ رہا ہوں اعلیٰ اداروں سے، ڈی آئی جی لاڑکانہ سے، ایس ایس پی لاڑکانہ سے، آئی جی سندھ سے، کہ ایسا ہمارے معاملے کا نوٹس لے کے ہمارے کو انصاف دلاؤ، اور اس کا جب بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی بٹھائی جائے
GIT बिठेगी तो पता चलेगा कि किस मौके पे कत्ल हुआ है, कैसे कत्ल हुआ है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे बेगुनाह उन्होंने जो कत्ल अपना जान पूछ के करवाया है, पता नहीं खाने के चक्कर में करवाया है कि बस हमारा कत्ल हो जाए तो हम सारे गोट की जो ज़मीनें हैं, जो गोट वाले हैं, उनको बस इधर से उठा के और दरपदर करेंगे और ज़मीनों पे कब्जा करेंगे। उनका मौक़िफ़ भी यही है। कत्ल पे तो वो जा ही नहीं रहे। जब कत्ल पे जा रहे हैं तो कानूनी तरीके से चले ना। अगर उनका कत्ल हुआ है तो हम कह रहे हैं कानूनी तरीके से भले सजा दिलवाएं। जो दूसरे मुलजिम जो रूपोश हैं, उन मुजरिमों को पकड़े पुलिस। हम थोड़ी कह रहे हैं कि उनको नहीं पकड़े। ये कत्ल पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये ज़मीनों पे कब्जा करने की इनकी ये एक कत्ल का एक मिसाल दे के ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और हमारे घर जो तोड़े गए हैं ये सिर्फ खाने की लालच में है और कुछ भी नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर हास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लो थरपारकर डिप्लो शहर में तलो मोहल्ला 100 घरों पर मुश्तमल अकलीती बरादरी बुनियादी और शहरी हकूक से महरूम सरापा एहतजाज। तलो मोहल्ला वार्ड 3 तालका डिप्लो के मोहल्लादार 30 साल से जायद डिप्लो शहर में रह रहे हैं, लेकिन टाउन कमेटी की तरफ से कोई भी सहूलत मैसर नहीं हुई। अभी तक ना रोड, कच्ची सड़कें, ना नालियाँ, ना वाटर सप्लाई स्कीम, ना इलेक्ट्रिक पोल, ना सोलर स्ट्रीट पुल और ना ही स्कूल। मोहल्लादार जिसमें लेमो मिल, समानी, बहुजो मिल, वक्रम, भगवानी, गंजेश, कमार, रानो मिल, नहाले चिंद, भानभू, हेमन, मकेश कुमार, सामान, आसू मिल, आथम चंद, खमीर चंद, तन्नू मिल, महेंद्रू मिल, हीरा लाल, मेघानी, मिठो मिल, मेवाराम, हो तो चंद समेत मोहल्लादार का कहना है कि हम पीपल्स पार्टी का वोटर हैं। हम कई बार मुतलका नुमाइंदों और इदारों को दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई भी कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसे दौर में हमारे बच्चे, माएँ, बहनें सर पर पानी भरने जाती हैं। गलियां पक्की ना होने की सूरत में गंदगी का ढेर बन गया है। नालियां ना होने की वजह से पानी का रास्ता ना है। दूसरी तरफ बच्चों ने एहतजाज किया है कि जिसका कहना है कि हमारे पास गर्ल्स स्कूल नहीं है, बॉयज स्कूल दाखिला मिलता ही नहीं है, परेशान है। मजीद तफसीलात में मुतालबा किया गया है। तलू मोहल्ला वार्ड 3 तलका डिप्लो का पुराना वार्ड है, जिसको बुनियादी और शहरी हकूक दिया जाए ताकि एक बेहतरीन मोहल्ला बनाया जाए। दूसरी तरफ एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। खबर शामिल करते हैं मोरो से। कारपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट सिंध में पानी की मसनूई किल्लत। दरियाई सिंध में नई नहरें और मदनी वसाइल पर तजावीज़ात के खिलाफ मोरो में अवामी तहरीक का ज़बरदस्त एहतजाजी मार्च। एहतजाजी मार्च की क़यादत अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थेहड़ी, अवामी तहरीक के सीनियर नायब सदर नूर अहमद कटियार, लतीफ़ भट्टी, सिंधी रहनुमा मोमल डाहरी, फहमीदा सोमरो, सना राजपुर और दिगर ने की। एहतजाजी मार्च में सिंधी तहरीक की बहनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कारपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौका पर अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थेरी और मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कटियार ने खिताब करते हुए कहा कि दरियाई सिंध पर नई नहरें बनाने का फैसला अभी तक नहीं पलटा। CCI का फैसला गैर आइनी और सिंधी कौम की जदोजहद को खामोश करने की साजिश है। कारपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट और दरियाई सिंध पर नई नहरों के खिलाफ अवामी तहरीक की जदोजहद जारी रहेगी। नहरों के खिलाफ जदोजहद का दायरा वसी किया जाएगा। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी शरीफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक में चोरी की वारदात। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक में चोरी की वारदात हुई है, जिस पर यहाँ के लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया गया है। इलाका वालों ने हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू में और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त रोहड़ी शहर में मौजूद हूँ और ये मेरे आप देख सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहाँ के यहाँ वार मुबारक की ज़ियारत होती है रोहड़ी शहर में। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक गुज़श्ता रात बहुत बड़ी वारदात हुई है, जो कि इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। वैसे तो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, घरों में वारदातें होती हैं, लेकिन ये नाज़रीन इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी दो जहाँ की अजीम हस्ती, जहाँ पे ये वार मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। और ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि यहाँ गुज़श्ता रात एक वारदात हुई है, जो कि एक इंसानियत के नात एक शर्मनाक वाक़या है। आइए ये देखते हैं, ये यहाँ के अवाम से पूछते हैं ये वाक़या और ये कैसे बचा। इस वक्त मैं गेट पे मौजूद हूँ, ये यहाँ के शहरी हैं, इनसे पता करते हैं ये वारदात कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी ये भाई ये बहुत दिलखराश वाक़या हुआ है, ये किस तरह ये वाक़या हुआ है? ये रात के टाइम आए, तकरीबन सुबह का टाइम था, 4 बजे का टाइम था। अच्छा। तो ये एक नीचे से पहले मेन ताला तोड़ा है, फिर ऊपर से 2 ताले तोड़े और मेन दरवाजे का जहाँ पे मन पड़ी वो भी तोड़ा है और कीमती सामान सारा लेके गए। हम ये चाह रहे हैं, हमारे इंसाफ चाहिए, उनको पकड़ के उनके इतनी सज़ा दो जैसे आइंदा वो सोचे भी नहीं तो दूसरी ऐसी दरगाह पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार मुबारक के, ये आपका जो मेन गेट दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ दिखाता जाए। आए ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन गेट है जो इस गेट को तोड़ा गया है और यहाँ वारदात हुई है जो कि इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। अंदर क्या क्या वारदात हुई आप लोगों से पूछ रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में मौजूद हूँ जहाँ ये रात को गुज़श्ता ये एक शर्मनाक वाक़या हुई, दुख और अफसोस के बाद शर्मनाक बात है। बिल्कुल, पहले उन्होंने बिजली काटी है। अच्छा। कंप्यूटर चल रहा था, बिजली काट के उसको अंधेरा किया है दरगाह पे। अंधेरा करने के बाद ये जनरेटर और ये बैटरी आपके सामने, और ऊपर भी इन्होंने कोशिश की है चढ़ने की। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया है, जो अल्लाह पाक ने हमें बचाया। मौजूदा हो गया है क्या? वो अंधे हो गए, जो ऊपर तक ये नहीं पहुंच सके। ये अल्लाह ताला का बहुत हमारे पे करम है। नाज़रीन, ये मखदूम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके विरसे में है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार मुबारक की। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पूरे शहर को तकलीफ़ हुई होगी तो ये बानी है, इनको ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत हुई होगी जो ये गुज़श्ता रात एक शर्मनाक वाक़या हुआ है। इनसे पूछते हैं ये वाक़या सारा कैसे पेश आया। जी सर, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ मशहूर है कि रोड़ी शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने। आज सुबह, इससे पहले भी हमने बहुत दफ़ा कंप्लेंट्स भी किए हैं, वो में रिटर्न में उनके एविडेंस भी मौजूद है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। उसके हवाले से हमने 3-4 दफ़ा रिटर्न में एसएसपी साहब को एप्लीकेशन भी दी है। रिसेंटली अप्रैल के महीने में भी दी है। उसके बाद कल हमारा एक रोड़ी शरीफ का ग्रुप बना हुआ है, तो हमने उस ग्रुप में भी छोड़ा है कि यहाँ पर जो हमारा नीचे पार्क बना हुआ है, यहाँ पर नशे टाइप के लोग जुआरी आके बैठते हैं। आप निशानदेही कर चुके हैं ये पहले? हाँ बिल्कुल कर चुके हैं, उनके एविडेंस भी मौजूद है। वो आज भी हमने सुबह को जब हम इस कंप्लेन के लिए गए, वो एविडेंस भी साथ लेके गए, वो भी हमने थाने पर जाके जमा करा। हमारा मुतालबा यही है कि अच्छा, पुलिस आई इस वाक़े में? पुलिस उसके बाद आई है? बिल्कुल, हम बिरादरी वाले सारे गए थे थाने पे। जी जी। एसएचओ साहब वहाँ से हमारे साथ आए। एसएचओ साहब यहाँ पर टीम वाले भी लेके गए अपने साथ। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारा वो चांदी, मैं आपको बताता एक मिनट उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये सारा दरवाजा चांदी का है। इसमें जो कुंडा लगा हुआ था वो भी चांदी का है। अच्छा, वो भी कुंडा टूटा हुआ है? निकाला है, पूरा कुंडा निकाला है। अच्छा, ताले के साथ निकाला है, वो लेके नहीं जा सके। वो यहीं पर रह गया था, वो भी हमारी कस्टडी में ही। अच्छा, यहाँ असल हमारी जो अमानत है, मुँह मुबारक है, वो यहाँ से ऊपर जाएंगे, तिजोरी है वहाँ, तिजोरी वो अल्हम्दुलिल्लाह सेव है। वो अल्हम्दुलिल्लाह सेव है। यहाँ तक जो बंदा आ गया उसने तो अपनी कार्रवाई कर ली, उसको जो करना था उसने कर लिया। ये तो कुदरत वाले ने अपनी हिफाजत खुद की है। अच्छा, मैं ये आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि अब आप क्या मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, यहाँ की मकामी पुलिस से? सर, हमारा मुतालबा यही है, सबसे पहले इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग यहाँ तक आ सकते हैं, किस तबके से उनका ताल्लुक है, क्या कह सकते हैं हम। अगर एक मुसलमान होगा, सच्चा मुसलमान होगा, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। ये हमारी अपना ईमान है। लेकिन हम यही चाह रहे हैं, हम में भी कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो यानी मुसलमानों में भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा ज़रूर, आपने कोई किसी पे शक शोबे की कोई ज़ाहिर कोई ऐसे तो हमारी एसएचओ साहब से बात चल रही है। एसएचओ साहब अभी भी आए हुए हैं। अच्छा, अभी भी उन्होंने बोले हैं 2-4 जो नाम हैं, आप भी थे, मौजूद है? जी नहीं। जी नाज़रीन, ये यहाँ भाई बता रहे हैं कि यहाँ जनरेटर रखा हुआ था, वो जनरेटर भी यहाँ से ले गए, इनसे पता करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, यहाँ जनरेटर बड़ा था, जनरेटर भी जो है यहाँ से लेकर गए और वहाँ पे बैटरी भी पड़ी थी। अच्छा, वो बैटरी भी लेकर गए, वो चार्जर यहाँ पे छोड़ के गए, यहाँ से ताला। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या सामान लेकर? इससे पहले भी हमारी चोरी हुई थी, वो बाहर हुई थी दरगाह की, जो 49 की पहले बाहर हुई थी, वहाँ से पंखा। और इन्होंने बोला कि जिंदगी जब से यहाँ पर रोड़ी शक्कर की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। यहाँ ये बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे पता करते हैं, इसमें आपका क्या रद्द अमल है? क्या हमारा रद्द अमल ये है कि हमें तहकीकात करा के देना चाहिए
हमारे मखदूम ख़ानदान के लिए एक बड़ा धचका है। एक कभी भी इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ है। इसमें जो है हमारे साथ से इंतज़ामिया को हेल्प करनी चाहिए। इतनी बड़ी वारदात है, अल्लाह ने उनको अंधा किया है कि ऊपर नहीं जा सकते। काम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के सरदार उस हस्ती में ये यहाँ एक वाक़या और दिलखराश वाक़या हुआ है, और जो इंसान मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता इतना बड़ा ये वाक़या हुआ है। इस बारे में ये भाई क्या कहेंगे? जी भाई। हमारी उम्र गुजर गई, कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। मेरी 36 साल उम्र है, मैं मखदूम हूँ, कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। बड़ी दुख की बात। अच्छा, ये बताएं कि आप मखदूम फैमिली से हैं, आपकी ये विरसे में है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि ये मुझे समझते हैं कितने साल 992 ईस्वी से ये सिलसिला शुरू होता है। जी। तो आपने कभी बड़ों से या कभी ऐसा इस किस्म का कभी वाक़या सुना? कभी नहीं है ऐसा। अच्छा, जिंदगी रोड़ी की हिस्ट्री की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी दुख की बात है। इंशाल्लाह चोरों को पकड़ा जाए। जी नाज़रीन, अब से पहले कुछ देर पहले कबल एसएसपी सखर अजहर मुगल और अपनी टीम के हमरा आए, उनसे हमने अपना मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अभी आए हैं, हम अपनी पूरी तहकीकात करके फिर मीडिया से भी बात करेंगे। और उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ा एक शर्मनाक वाक़या है। हम सबसे पहले तो इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुँह मुबारक है। इस पे जितनी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि ये एक हस्ती का, ऐसी कीमती हस्ती का वो मुबारक है, उसकी दरगाह है जिसकी बस हम उम्मती हैं, इसलिए हम इसकी सब। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार मुबारक के अंदर के अहते में, जहाँ गुज़िश्ता रात इंतहाई अफसोस और एक शर्मनाक वाक़या हुआ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार मुबारक के दरवाज़े तोड़ के अंदर ये मज़ार में रहते में अंदर दाखिल होकर जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर वार मुबारक है, वहाँ भी ये चोर घुसे हैं और उन्होंने यहाँ जनरेटर यहाँ से उठाए हैं, यूपीएस उठाए हैं और यहाँ से दूसरी प्लेट्स वगैरह उठाई हैं और सारी तारें तोड़ के ले गए हैं, जो कि इंतहाई दुख और अफसोस की ये मकाम है। लोगों का यही कहना था कि जो मुहब्ब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला होगा वो कभी भी ऐसी घनौनी हरकत नहीं करेगा, और जिसमें यहाँ के इलाके वालों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसके अलावा यहाँ के मकामी लोग थे, सियासी समाजी और यहाँ मखदूम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का यही कहना था कि ये शर्मनाक वाक़या इंतहाई तारीख में, रोड़ी की तारीख में ज़िंदगी में ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ के मकामी नुमाइंदों MNA MPS से और यहाँ की इंतज़ामिया से और यहाँ की पुलिस से फिलफौर मुतालबा किया है कि ये जो इस घिनौने हरकत की है, ये इन्होंने जो वारदात की है, और इनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ हुसैन और न्यूज़ सक्का।